today video, it is the second part of simple interest. I will discuss with you some different type of problems. Okay, now the first problem, the interest on sum of money at 6% per annum for 7 years equals to twice the interest on another sum of money for 9 years at 5% per annum. Find the ratio of the two sums. That is, in this question sum is also not given. sum जो है वो आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, मगर आपको ये बता रहा है कि एक सम है जिसमें सम हम लोग एज पर गिवन डेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, लेट द फर्स्ट प्रिंसिपल बी P1. हम लोग ये मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है, P1 है, राइट. एज पर द क्वेश्चन द सम ऑफ मनी at 6% per annum, that is the rate are there 6% per annum and the period are there, that means T are equals to 7 years, is equals to the twice the interest on another sum. Another sum पे assumption ले लेते हैं, the another sum that means second part, second principal B P2, therefore P are equals to P2, another sum, and the rate is 5% per annum, 5% per annum, and the period are there T are equals to 9 years. What is the theme of the question? Theme of the question is both the interest are equal. Understand? The equal, the twice the interest. That means first of all calculate the amount of interest in first condition and the calculate amount of simple interest in second condition. As per the question, this CI are equals to twice of second CI, right? Second CI, that means this SI is belongs to first condition, this SI that means simple interest is belongs to second condition, right? Now first of all calculate the simple interest for first condition. SI are equals to P into R into T divided by 100. Now the value P1 into R6 into 7 divided by 100. Now simple interest for the first condition 42 P1 upon 100. Same as it is for second condition, simple interest are equals to P into R into T divided by 100. Now the P2 into R is there 5, time is 9 divided by 100. Now the simple interest are equals to 9 5 is 45 P2 by 100. Okay, as per the question, simple interest of first condition twice of the simple interest of second condition, as per the question, and this is the theme, right? Now both the simple interest are put in this equation. Therefore first CI 42 P1 upon 100 are equals to twice of 45 P2 upon 100. ये आप लोगों को मालूम है, this one and this one are cancelled, right? Now 42 P1 are equals to 2 into 45 into P2. Therefore P1 upon P2 are equals to 2 into 45 divided by 40. Cancel कर दीजिए, 2 1s are 21, right? 3 से cancel कर दीजिए, 15 3s are 45, 7 3s are 21. Now the ratio of principal first and second condition say 15 is to 7. Clear? Now the next sum. A businessman borrowed from two money lender a sum of rupees 2000. एक बिजनेसमैन ने क्या किया, उसने कुछ पैसा बोरो किया दो मनी लेंडर से, और कितना बोरो कर रहा है, 2000 rupees. That means this is the principal. Understand? For one loan the rate of simple interest was 8%.
टोटल प्रिंसिपल आर इक्वल्स टू ₹2000। दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड, क्योंकि वो दो लोगों से लोन बोरो कर रहा है, राइट। फॉर वन लोन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वाज 8%, आर इक्वल्स टू 8%, क्लियर, per annum, and that for the other was 6% per annum. Now 6% per annum, right? He had total interest of ₹136 for 1 year. Total amount of interest. Total amount of interest, right? Are equals to ₹136. Find them borrowed of each rate of interest by him. तो आपको इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? आपको सिर्फ टाइम ढूंढना है। आपको क्या लिखा, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। द बिजनेसमैन borrowed from two money lender a sum of ₹2000 for one loan. The rate simple interest was 8% per annum. That for the other was 6% per annum. He had a total interest for ₹136 for 1 year, right? For 1 year, that means time is equals to 1 year, and again time is r equals to 1 year. अब आपको डिफाइन करना है कि उसने फर्स्ट वाले से कितना अमाउंट बोरो किया था, सेकेंड वाले से कितना अमाउंट बोरो किया। दिस इज द फर्स्ट मनी लेंडर और दिस इज द सेकेंड मनी लेंडर, ठीक है। तो हमारे पास है, हम लोग assumption ले लेते हैं। लेट द अमाउंट borrow from first be ₹x। फर्स्ट से उसने कितना बोरो किया, x बोरो किया, therefore the principal are equals to x for first money lender, ठीक। अब सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, now another borrowed amount from second money lender, understand, are equals to 2000 minus x, क्योंकि आपका टोटल प्रिंसिपल कितना दिया है, कितना उसने बोरो किया था, टोटल 2000 बोरो किया था। अगर इसके लिए x हो गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 2000 minus x, clear। Now to find out simple interest, because in this question total amount of interest are there, that means x के ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2000 माइनस x के ऊपर वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, वो दोनों का इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, ₹136 पे कर रहा है, ठीक है। therefore what is the equation, total amount of interest are equals to interest on first money lender plus interest on second money lender, right। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल इज x, यहाँ x लिख दीजिए, r 8%, टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100, नाउ 8x upon 100. This is the first simple interest, right? Now the second simple interest are equals to P in the second condition. The principal is 2000 minus x into rate is 6% and time is 1 year divided by 100. Therefore 2000 minus x into 6 by 100. This is the second simple interest. Now sum of both are equals to 136. Clear? As per the question. तो हम लोग क्या करते हैं, the value of first simple interest and second simple interest, the total interest are put in this equation, right? Put कर देते हैं, 136 are equals to 8x upon 100 plus within bracket 2000 minus x into 6 by 100. ये सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं,
LCM is 100. Now 8x plus 6 to the 12,000 minus 6x. Therefore cross multiplication, 136 into 100, 136 into 100 are equals to 8x minus 6x, 2x plus 12,000, right? Therefore 2x are equals to 13,600 minus 12,000. Now x are equals to 1600 divided by 2 are equals to rupees 800. What is the value of x? 800, and x is the principal of first money lender. Clear? Therefore the first principal is rupees 800 and the second principal 2000 minus 800 से rupees 1200. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं हम लोग. अ फादर लेफ्ट रुपीज 15,860. एक फादर है, उन्होंने 15,860 रुपए छोड़े फॉर हिज 3 सन्स, 3 बच्चों के लिए ABC, जिनका नाम है एज 16 इयर्स, 15 इयर्स एंड 14 इयर्स रिस्पेक्टिवली, जिनका एज दिया हुआ है, विद द डायरेक्शन दैट द सम वुड बी द डिवाइडेड इन सच अ वे that 3 sons get the same amount when they are adult, say 18 years. Okay, assume that the rate of simple interest is 5% per annum. Calculate their initial sum. अब ये initial sum that means क्या होगा कि उनका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज डेटा है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक फादर है जो कि 15,680 रुपीज क्या करते हैं, अपने 3 बच्चों के लिए छोड़ते हैं. ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि उनका जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो दिया हुआ है, और उसके साथ में ये बता रहा है कि उनको जो जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो उनको जो अमाउंट रिसीव होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. दैट मीन्स द थीम ऑफ द क्वेश्चन amount, that means amount say principal plus interest, say simple interest. ये जो होगा in this case this amount for A, B and C, A, B and C के लिए क्या होगा, इक्वल होगा आफ्टर the age of 18. ठीक है, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनका जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा. टोटल अमाउंट is 15,860, right? The age of A, B and C, the present age is 16 years, 15 years and 14 years, right? The present age is 15 years, 18 years and 16 years, 15 years and 14 years. And the rate of interest for each, rate of interest are equals to at the rate of 5% per annum, right? अब आपको ये देखना है कि ये 16 इयर्स का है, दिस इज द प्रेजेंट एज, राइट? दिस इज द प्रेजेंट एज. अब ये 18 इयर्स के जब होंगे, हाउ मच टाइम आर टेकन फॉर A? 2 years. Clear? Now same process for B, 3 years. Now same process for C, 4 years, right? 4 साल लगेंगे. C को 4 साल लगेगा 18 होने में, B को 3 साल लगेगा और A को 2 साल लगेगा. ठीक है, अब ये तीनों केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग assumption लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल आर नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन देन टेक द अमाउंट बी ₹100. ठीक है, ये एक्स से भी बन सकता है, तो हम लोग assumption लेते हैं, लेट
the amount be ₹100 for A, B and C। ठीक है, कि तीनों का जो अमाउंट है वो क्या होगा, तीन मतलब A, B एंड C का जो अमाउंट है वो कितना होगा, 100 रुपीज होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट आर इक्वल आफ्टर द एज ऑफ 18 और कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18। दैट मींस वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनको जो मिलने वाला अमाउंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। चलिए फर्स्ट के लिए assumption लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A/P प्लस SI, क्लियर। बिकॉज अमाउंट है हमारे पास, रेट है और टाइम है। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, टाइम है आपके पास, रेट दिया हुआ है और आपके पास क्या है, अमाउंट है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं A/P प्लस SI। A/P SI से P into R into T डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। क्या मालूम है वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं एज पर द क्वेश्चन। द अमाउंट फॉर A इज आल्सो नोन एज 100, क्योंकि हम लोगों ने assumption ले लिया है कि A, B और C का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100 होगा। P मालूम नहीं है, P को P रहने दीजिए, P नहीं मालूम है, R is known 5%, time is known 2 years, clear, divided by 100, ठीक है। या इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, या आपको मैं बताता हूं इसका फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। आप फॉर्मुलेशन कर लीजिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। A/P, इसमें से अगर आप P कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, P कॉमन लेते हैं, P कॉमन ले लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए जो ज्यादा आसान है। 100P प्लस P इंटू R इंटू T, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू A R इक्वल्स टू 100P प्लस P इंटू R इंटू T, ठीक है। अब इसमें से P कॉमन ले सकते हैं, P कॉमन ले लीजिए, 100 प्लस RT, राइट। देयरफॉर 100 इंटू A, PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू A डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू T। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आप ये दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए फॉर A के लिए यूज करते हैं PR इक्वल्स टू 100, amount is always 100 divided by this one 100 plus sign R into T, R is 5% for everyone A, B and C, 5 into T, T for A, टाइम देख लीजिए, टाइम दिया हुआ है 2 years, ठीक है, 2 कर दीजिए। नाउ PR equals to 10,000 divided by 110, ठीक है। ये A के लिए कैलकुलेट हो गया। B के लिए कैलकुलेट करते हैं, B के लिए कैलकुलेट करते हैं PR इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला 100 इंटू अमाउंट फॉर A, B and C आर सेम 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू T। रेट इज कॉमन फॉर A, B and C, टाइम for B is 3 years, right? Now PR equals to 10,000 divided by 150, clear? Same as it is for C, C के लिए कैलकुलेट कीजिए, PR equals to 100 into A, same 100 because A, B and C amount are same as per the question, divided by 100 plus R into T. R is 5% for common for A, B and C, time is 4. Therefore PR equals to 10,000 divided by 120, clear? Now first of all calculate the ratio, calculate the ratio of their principal, right? हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, पहले प्रिंसिपल का रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर A, B एंड C। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10,000
divided by 110, 10,000 divided by 150, 10,000 divided by 120. रेशियो निकालना मेरे ख्याल से सबको आता है, बहुत इजी है। 1/110, 1/150, 1/120. It is all the items is divisible by 5. मिनिमाइज कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए, बहुत इजी है। 110 divided by 5 say 22, 1/22. 150 divided by 5 say 23, and 120 divided by 5 say 24. न्यू रेशियो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ 1 के लिए 23 into 24 कर दीजिए, इसको छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड अगर इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 23 को ओमिट करना है और ये दो बाजू वालों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 22 into 24, राइट। एंड फॉर थर्ड 22 into 23। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 into 24 are equals to 552. This is the new ratio. 22 into 24 528, and third 22 into 23 is 506. 22 into 23, right? And the amount of 15,860 are distributed in the ratio of this one. Clear? मेरे ख्याल से सबको मालूम है। वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। 552x plus 528x plus 506x are equals to 15,860. ऐड कर लीजिए। 552 plus 528 plus 506 are equals to 1,586. x are equals to 15,860. Now x are equals to 15,860 divided by 186 are equals to 10. मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ए। क्वेश्चन ऑफ ए 552x से 552 into 10 कर दीजिए तो 5520। क्लियर हो जाएगा आप लोगों से, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड ₹5500 into 3 parts। 5500 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, so that their interest at the rate of 4% per annum सिंपल इंटरेस्ट, और उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट दिया है वो 4% पर annum सिंपल इंटरेस्ट दिया है फॉर 2 years, 2.5 years एंड 5 years। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर इक्वल, और ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन में गिवन डेटा जो है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। Here now total amount are there 5500, right? Total amount are there ₹5500 are distributed into 3 parts। 3 पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। The rate of interest, the first part, the second part and the third part. Now the rate of interest are same for first part, second part and third part, right? And the time are there are the different 2 years for first part, 2.5 years, that is 2.5 years for second part, and 5 years for third part, right? साथ में आपको बता क्या रहा है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि थीम क्या दिया हुआ। थीम मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, their interest at the rate of 4% per annum simple interest for 2 years, for 2.5 years and 5 years respectively are equal। That means the simple interest in all the cases are equal। जो simple interest है वो सभी केस के लिए इक्वल है। तो सबसे पहले आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं। लेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच केस बी ₹100। ठीक है, चाहे फर्स्ट केस हो, चाहे सेकंड केस हो, चाहे थर्ड केस हो, सबके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ डेटा आ जाए,
सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू 100, अगेन दिस 100, अगेन दिस 100। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100। this one is given, this one is given, this one is given, therefore to find out the value of p in all three cases. Clear? Now the first case, simple interest 100, principal p1 into rate 4 into time 2 divided by 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10,000 r equals to 8 p1, right? Therefore p1 r equals to 10,000 divided by 8. This is first value of p1 in condition 1. Condition 2, again simple interest be 100 for all three cases. Understand? R equals to principal p2, rate 4 years and time 2.5 divided by 100. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगेन दिस वन इज 10,000, r equals to p2 into 10, therefore p2 r equals to 10,000 divided by 10. Clear? Same for third case, simple interest 100, principal को assumption ले लेते हैं p3 r 4 into time 5 divided by 100, by cross multiplication 100 into 100 r equals to p3 into 20. Now p3 r equals to 10,000 divided by 20. Again to find out the ratio of principal, right? To find out the ratio of principal, ratio of principal for first, second and third condition, तीनों कंडीशन के लिए आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, 10,000 divided by 8, 10,000 divided by 10, 10,000 divided by 20, 10,000 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 by 8 is to 1 by 10 is to 1 by 20। इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, all are the items are divisible by 2, therefore 1 by 4, 1 by 5 और 1 by 10। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा और 10 2 जा, therefore the new ratio is 5:4:2, that means the amount of rupees 5,500 are distributed in the ratio of 5:4:2। क्लियर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज x, therefore 5x plus 4x plus 2x are equals to 5,500. 9 11x are equals to 5,500. Now x are equals to 5,500 divided by 11, say x are equals to 500, right? To find out the value of first portion 5x, 5 into 500 कर दीजिए, 5 into 5x are equals to 5 into 500 are equals to 2,500. Same as it is 4x, 4 into 500 कर दीजिए 2,000, 2x 2 into 500 कर दीजिए, ये 1000 आ जाएगा। इसको सम कर दीजिए, 5,500 आ गया, that means your solution is correct. Okay, again this is the last sum of this video. Divide rupees 2,600 into 3 parts in such a way that of simple interest on first part at the rate of 4%, on the second part at the rate of 6%, and the third part is 8% is equal। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और अभी जो मैंने बताया इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपको ये समझना है। अगेन टोटल अमाउंट आर देयर rupees 2,600, right, in this question। अब इस क्वेश्चन में आपके पास रेट आर देयर, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड और थर्ड।
तीन पार्ट में इसको भी 2600 को डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ द रेट आर देयर इन फर्स्ट कंडीशन 4%, 6% and 8%. Okay. In the same time, now the time assumption ले लेते हैं T. ओके, इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास, रेट सेम था, टाइम अलग अलग था। इस क्वेश्चन में टाइम सेम है, रेट अलग अलग है। दैट मीन्स अगेन टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ देयर प्रिंसिपल, राइट। तो हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का रेशियो कैलकुलेट करना है। अब प्रिंसिपल का रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको क्या असम्पशन लेना पड़ेगा, फिर से इंटरेस्ट एज्यूम करना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन अगेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आर इक्वल। दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। जब सेम है तो असम्पशन ले लेते हैं, लेट द सिंपल इंटरेस्ट बी ₹100 फॉर ईच केस, सभी केस के लिए 100, ठीक है। अब फॉर्मूला फिर से, सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, पुट कर दीजिए। इन फर्स्ट केस 100 प्रिंसिपल पी रहने दीजिए, P1 कर दीजिए, इंटू आर 4% टाइम टी कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 आर इक्वल्स टू P1 into 4T. Clear? Therefore, P1 are equals to 10,000 upon 4T. This is the first part. Clear? Second के लिए कैलकुलेट करते हैं। Second के लिए again simple interest are same for all the cases. Clear? Each cases, that means all the cases. Right? 100 P2 कर लीजिए into 6 into time डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 10,000 into 10,000 100 into 100 are equals to P2 into 60, therefore P2 are equals to 10,000 divided by 60. Clear? In third case again simple interest are equals to P3 into 8T divided by 100, therefore P3 are equals to 10,000 divided by 8T. Okay, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल सॉरी प्रिंसिपल, राइट। 10,000 अपॉन 40, 10,000 अपॉन 60, 10,000 अपॉन 80। रेशियो कैलकुलेट करना आता है, 10,000 10,000 10,000 ओमिट हो जाएगा, टी 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 ओमिट हो जाएगा, 4 6 8 ऑल आर द डिविजिबल बाय 2, राइट। देयरफॉर द रेशियो 1/2 is to 1/3 is to 1/4। एलसीएम ले लेते हैं 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। दिस इज द न्यू रेशियो। Okay, this is the new ratio. Again, assume the variable assume करते हैं x, ठीक है। चलिए वेरिएबल छोड़ देते हैं। क्या आप लोगों को बचपन में जैसे पढ़ते थे वो चीजें याद हैं या नहीं याद है, हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या बताया है, 2600 are divided in the ratio of 6:4:3। हम लोग कैसे करते थे, फर्स्ट पार्ट 2600 into 6 this one and divided by sum of this 13, ठीक है। second part 2600 into 4, right, this one and divided by sum of this 13, right, and the third part 2600 into 3 divided by 13। इसको सॉल्व कर देना, 13 2 जा 16 होता है तो 200 therefore 600, ठीक है, 2 800 and this is 6 2 जा 12। इसको ऐड कर दीजिए, ये अगर टोटल 2600 आ रहा,
दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे और एंड करने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. ठीक है, साथ में हर वीडियो में मैं एंड में बताता हूं कि मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं इस क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं. इफ एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है या किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो की जरूरत होती है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करें. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो.